راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام راہ زندگی میں ہوں آپ کی ہوسٹ ریبا نئی۔ میری طرف سے بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ تو کہیے کہ آپ کیسے ہیں اور کیسی مصروفیات جا رہی ہیں۔ اگرچہ گرمی کی شدت تو ہے، لیکن حالات اور واقعات کیسے ہی کیوں نہ ہو، موسم کیسا ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اپنے معمولات زندگی کو اور اپنی جو ساری ہماری مصروفیات ہیں اس کو ایسے ہی لے کر آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ جی ضرور، آپ اپنی ساری ذمہ داریوں کو پورا کیجیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہنا چاہیں گے کہ اپنا اور اپنی صحت کا بھی خوب خیال رکھیے اور گرمی کی شدت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ جب آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو اپنے سر کو کیپ سے یا کسی کپڑے سے آپ ڈھانک لیجیے، اور ان دنوں میں مشروبات کا بھی زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے، اور خاص طور پر صاف ستھری غذا، کیونکہ یہ ایسا موسم ہوتا ہے کہ ہمیں ٹھیلوں پر اور باہر بہت سی کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی ہیں اور ہم ان کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم صاف ستھری غذا کا استعمال کریں تاکہ صحت مند اور تندرست رہ سکیں اور اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طور پر پورا کر سکیں۔ تو چلیے اسی بات کے ساتھ پروگرام کی طرف بھی بڑھتے ہیں، گو کہ ہم ہر طرح سے اپنا خیال رکھنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں صحت، تندرستی، زندگی اور سلامتی سے نوازتے ہیں۔ تو آئیے پروگرام کا آغاز خدا ہی کے پاک نام سے یعنی تلاوت کلام مقدس سے کرتے ہیں۔ خداوند کی حمد کرو اے میری جان، خداوند کی حمد کر، میں عمر بھر خداوند کی حمد کروں گا۔ جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا، جس نے آسمان اور زمین اور سمندر کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا، جو سچائی کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے، جو مظلوموں کا انصاف کرتا ہے، جو بھوکوں کو کھانا دیتا ہے۔ خداوند قیدیوں کو آزاد کرتا ہے، خداوند اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، خداوند جھکے ہوئے کو اٹھا کر کھڑا کرتا ہے، خداوند صادقوں سے محبت رکھتا ہے، خداوند پردیسیوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ یتیم اور بیوہ کو سنبھالتا ہے۔ یقیناً ہمارا خدا حمد اور تعریف کے لائق ہے، وہی بزرگ ہے اور وہی معبود واحد ہے، اور ہمارا خدا ایسا رحیم و مہربان ہے کہ نہ صرف اس نے پوری کائنات کو، تمام انسانوں کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، بلکہ وہ ان کی فکر کرتا، انہیں سنبھالتا اور ان کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے۔ یتیم، بیوہ اور بے آسرا لوگ جن کا شاید کوئی انسان سہارا یا مددگار نہ ہو، خدا ان کو بھی سنبھالتا، ان کی فکر کرتا اور ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ تو بھی انسان ہوتے ہوئے اور ایماندار ہوتے ہوئے اپنے آس پاس کے ضرورت مندوں کا خیال رکھنا ہمارا بھی فرض ہے۔ بہت ہی خوبصورت کلام ہم نے سنا بائبل مقدس سے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو یاد کروا دیں کہ آپ سن رہے ہیں پروگرام راہ زندگی، اور آپ ہمیں پروگرام میں خط لکھ سکتے ہیں۔ ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، پوسٹ باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد، پاکستان۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 0333482596 یعنی 033348259663۔ ہمارا یوٹیوب چینل ہے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز، اور ہماری فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد۔ تو کوئی بھی سہولت استعمال کیجیے، ضرور ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے، ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجیے، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ تو بہت بہت شکریہ ان تمام لسنرز کا جنہوں نے اپنے خطوط اور پیغامات کو ہم تک پہنچایا۔ تو آئیے ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی، ملک اللہ بچایا کھوکھر، جن کا تعلق سنگت ریڈیو لسنرز کلب سے ہے اور آپ مظفر گڑھ کے رہنے والے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی بڑی باقاعدگی اور شوق سے سن رہے ہیں۔ پروگرام کے سبھی سیگمنٹس بہت ہی پسندیدہ، دلچسپ اور معلوماتی ہیں۔ پروگرام اپنی نوعیت کے اعتبار سے کافی اچھا اور پسندیدہ ہے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی ساری نیک تمناؤں کے لیے بھی، اور آپ کے اس فیڈ بیک کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ملک اللہ بچایا کھوکھر۔ اظہر پٹھان، آپ ہمیں لکھتے ہیں کہ راہ زندگی
प्रोग्राम को सुन रहे हैं और राह जिंदगी प्रोग्राम इंसान को शऊर दे रहा है और भलाई के काम कर रहा है। और डॉक्टर साहब की गुफ्तगू जो कि सिगरेट नोशी पर थी वो भी बहुत अच्छी थी। ये बहुत बड़ी इंसानियत है और राह जिंदगी इंसानियत का सबक है। आप कहते हैं कि प्रोग्राम जो आप पेश कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और राह जिंदगी प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। हमारी तरफ से आप सबको सलाम कबूल हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर पठान, आपके सारे फीडबैक के लिए। आपने प्रोग्राम को पसंद किया और आपने इस बात को भी एक्नॉलेज किया कि प्रोग्राम राह जिंदगी जो है वो इंसानियत का सबक दे रहा है, दर्स दे रहा है और अच्छी जो वैल्यूज हैं उनको माशरे में प्रमोट कर रहा है। आपके सारे फीडबैक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुलेमान अंसारी आप थरपारकर से लिखते हैं कि प्रोग्राम सुना, तिलावत कलाम मुक़द्दस और हमदिया गीत बहुत ही अच्छा लगा। अलीशा नबी के हालात ज़िंदगी पर ड्रामा भी सुना, उसकी किस्त बहुत अच्छी लगी, मौसीकी भी खूब थी और दुआ भी की, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सुलेमान अंसारी, आपने थरपारकर से हमें अपना फीडबैक दिया। आपकी इस मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। असद मुराद आप कहते हैं कि प्रोग्राम सुना, बहुत ही अच्छा लगा और आप कहते हैं कि हस्बे मामूल कलाम मुक़द्दस और हमदिया गीत से प्रोग्राम का आगाज़ किया गया तो बहुत ही अच्छा लगा। खतूत और SMS भी प्रोग्राम में दिलचस्प थे और प्रोग्राम में खूब मिठास थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया असद मुराद आपके सारे फीडबैक के लिए। और असद मुराद आप ही का एक और भी पैगाम हम तक पहुंचा। आप कहते हैं कि सिस्टर रीबा नईम साहिबा, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगी। कलाम मुक़द्दस और हमदिया गीत सुनकर बहुत अच्छा लगा। सामाईन के खतूत SMS प्रोग्राम में अच्छे थे, चुरागे राह भी अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया असद मुराद जी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और बहुत ही अच्छा लगा आपके इस मुख्तसर लेकिन इंतहाई खूबसूरत फीडबैक के लिए। उम्मीद है कि आप इसी तरह से प्रोग्राम को सुनते रहेंगे और इसमें शामिल होते रहेंगे। मास्टर महबूब अहमद आप कहते हैं कि प्रोग्राम हमने सुना, प्रोग्राम का आगाज़ बहुत ही पसंद आया, हमदिया गीत भी अच्छा था, सेहत की बातें भी बहुत ही अच्छा सेगमेंट था। खतूत और पैगामात में अपना नाम ढूंढता रहा मगर कहीं सुनने को नहीं मिला। मास्टर महबूब अहमद बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस फीडबैक के लिए। और ऐसा कैसे हो सकता है, ज़्यादातर आपका नाम तो प्रोग्राम में शामिल किया जाता है और हो सकता है कि उस दिन वक्त की कमी के बायस आपका खत प्रोग्राम में ना शामिल किया गया हो, लेकिन ज़्यादातर मुझे याद है आपका खत जब भी आता है, मैसेज जब भी आता है तो हम इसको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सारे फीडबैक के लिए। तो ज़रूर आप अपना राब्ता प्रोग्राम के साथ कायम रखिए और अपना फीडबैक देती रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद लतीफ़ सांगला हिल से आप कहते हैं कि ईद मिलन पार्टी का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा और आप कहते हैं कि प्यार मोहब्बत के रिश्ते हमेशा चलने चाहिए और आप कहते हैं कि आइंदा भी हम ज़रूर इस सिलसिले में आगे आगे पेश रहेंगे। जाहिद लतीफ़ आपने सांगला हिल से हमें मैसेज किया, बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी सारी मोहब्बत के लिए और सारे फीडबैक के लिए। रशीद नाज आप फैसलाबाद से लिखते हैं कि ईद मिलन पार्टी बहुत ही अच्छी रही और आप कहते हैं कि मुझे एमरजेंसी कॉल की वजह से वापस आना पड़ा, जिसके लिए माजरत चाहता हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया रशीद नाज आपकी भी इस मुख्तसर मैसेज के लिए। रज़ाक शाहिद आप कहते हैं कि मुझे ईद मिलन पार्टी के लिए मदऊ किया गया और आपने जो वहाँ मोहब्बतें बांटी, उन मोहब्बतों को हम बड़े प्यार से समेट कर अपने दिल के गोशे में हमेशा के लिए महफूज रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ाक शाहिद आपके खूबसूरत अल्फाज के लिए और आपके इस खूबसूरत फीडबैक के लिए। तो इसी तरह से आप प्रोग्राम को सुनते रहिए, इसमें अपना फीडबैक भेजते रहिए, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा और आपके पैगाम को आपके नाम से हम जरूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और ड्रामा चुरागे राह जो सबका बहुत ही पसंदीदा है और अपनी कामयाबी की और पसंदीदगी की बुलंदियों को छूता जा रहा है। हम इसमें सुन रहे हैं अलीशा नबी के हालात ज़िंदगी पर मबनी कहानी। तो आज सुनेंगे इसकी हम छठी किस्त। बादशाह सलामत, मेरे मालिक बादशाह सलामत। क्या बात है औरत? मेरी कुछ मदद करें बादशाह सलामत, मेरी मदद करें। अगर खुदा ही तुम्हारी मदद नहीं करता तो मैं भला कहां से तुम्हारी मदद करूं? क्या खलियान से तुम्हारे लिए गंदम लाऊं या अंगूर के कोलू से शराब? हाँ मेरे मालिक बादशाह। हाँ कहो, क्या बात है? मेरी हमसाई ने मुझे कहा था अपना बेटा दो ताकि आज हम दोनों खानदान उसे खाएं और कल मैं अपना बेटा खाने के लिए दूंगी। खाने के लिए? तुम्हारा बेटा? हाँ, इस तरह मैंने अपना बेटा उबाला और हम सब ने खाया। फिर जब अगले दिन मैंने उसे कहा कि अपना बेटा लाओ ताकि आज हम उसे खाएं, तो अब उसने अपना बेटा छुपा लिया है। ओह मेरे मालिक, ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपने कपड़े मत फाड़ें। अब नौबत यहां तक आ गई है। अलीशा नबी कहां है? अगर मैं आज उसका सर उसके जिस्म पर रहने दूं तो खुदा मुझसे ऐसा ही करे, बल्कि इससे भी ज्यादा। सरदार आजम। जी बादशाह सलामत। तुम्हारी तलवार तुम्हारे पास है? ठीक है,
अभी अलीशा नबी के घर जाओ, उसे बाहर निकालकर उसका सर कलम कर दो। उसका सर 1 घंटे के अंदर मेरे पास लेकर आओ। बहुत अच्छा बादशाह सलामत। अलीशा नबी, क्या खुदा की तरफ से हम सब के लिए कोई और पैगाम नहीं मिला? शहर के मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि खुदा अपने वक्त पर अपने लोगों को रिहाई देगा। अलीशा नबी, लोग हमसे पूछते रहते हैं, कुछ तो मरने के करीब हैं। हमारे सिपाही इतने कमजोर हैं, अगर हमला हो तो वो शहर की दीवारों की हिफाजत नहीं कर सकेंगे। मैं जानता हूं, मुझे मालूम है। अलीशा नबी, आप दरवाजे की तरफ ही देखे जा रहे हैं। क्या आपको किसी का इंतजार है? हाँ, किसी भी वक्त बादशाह की तरफ से एक कासिद आने वाला है। उसका हुक्म है कि मेरा सर कलम कर दे। आपका सर कलम कर दे? खुदा रहम करे, आपको ये कैसे पता चला? खुदा ने मुझे दिखाया है। वो कातिल का बेटा। ओह नहीं अलीशा नबी, ऐसी बातें ना करें। उसके बाप अखियब बादशाह ने बहुत से नबियों को कत्ल करवा दिया था, और अब अखियब बादशाह के बेटे ने मुझे कत्ल करने का हुक्म दिया है। ओह, हम क्या करें? बादशाह यूराम ने मेरे मोजज़े देखे हैं, और उसने अब तक मेरी बात पर उम्मीद रखी थी, लेकिन अब वो आरामियों की बजाय मेरे साथ नाराज है। देखो, जब वो कासिद यहां आए तो दरवाजा बंद कर देना और मजबूती से बंद रखना। लेकिन अगर बादशाह ने उसे भेजा है। इसकी फिक्र मत करो, मेरा ख्याल है उसका मालिक बादशाह अपना इरादा बदल लेगा। क्या उसके मालिक के कदमों की आवाज उसके पीछे नहीं आ रही? ये वही है। तुम दोनों दरवाजे को जोर से धकेल कर रखो। ठीक है, हम इसे बंद ही रखेंगे। दरवाजा खोलो, खोलो इसे। मैं बादशाह का पैगाम लेकर आया हूं। बादशाह तुम्हारे पीछे ही आ रहा है। जब वो आ जाएगा तो फिर हम दरवाजा खोलेंगे। बादशाह, क्या मतलब है तुम्हारा? ओह, जरा ठहरो। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत आ गए हैं। क्या खुदा के नबी यहां हैं? अलीशा नबी, अलीशा नबी। हां बादशाह सलामत, मैं यही हूं। बादशाह और उसके कासिद के लिए दरवाजा खोल दो। सलामती हो बादशाह सलामत, अंदर आएं और बैठ जाएं। सलामती हो अलीशा नबी। सरदार आजम, आपकी भी सलामती हो, अंदर आ जाएं। सलामती हो अलीशा नबी। बादशाह सलामत, आप मेरी सलामती चाहते हैं और इज्जत भी करते हैं, फिर भी आपने इस सरदार को मुझे कत्ल करने के लिए यहां भेजा। आपको कत्ल करने? ओह अलीशा नबी, यकीन करें। क्या यह सच नहीं है? खैर, मैं मानता हूं मुझे गुस्सा आ गया था। आप यही कहते रहते हैं, ये अरामियों की आफत, ये सख्त कहत खुदा की तरफ से है, ये कि वो मुझे और हमारी कौम को हमारे गुनाहों की वजह से सजा दे रहा है, और ये कि आखिर में वही हमें बचाएगा। हाँ, ऐसा ही है। हमने आपके कहने पर बहुत इंतजार किया है कि खुदा हमें बचाएगा, लेकिन हम अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा, लोग हौसले हार चुके हैं। बोलो बुजुर्गों, क्या यह सच नहीं है? ये सच है अलीशा नबी। हाँ, अब अगर इरामी हम पर हमला कर दें तो हम शहर का दिफा नहीं कर सकते। बादशाह सलामत, आपके हमायती जिनकी आप मदद करते रहे हैं, हित्तियों और मिस्रियों की तरफ से कोई पैगाम नहीं मिला? उनमें से कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, और ना ही कोई पैगाम मिला। ना वो और ना ही आपका खुदा हमें बचाएगा। खेल खत्म हो चुका है। मैं इससे ज्यादा खुदा का इंतजार क्यों करूं? बादशाह यूराम, आपका क्या मतलब है? क्या सामरिया कहत या तलवार से हलाक होगा? क्या अब हथियार डालने के सिवा और कोई चारा है? नहीं, कभी नहीं। खुदा अपने लोगों को सिर्फ सख्त सजा देना चाहता है, उन्हें तबाह करना नहीं चाहता। अलीशा नबी, क्या आपको समझ नहीं आ रही? हमारा खात्मा होने वाला है। सरदार आजम, क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है अलीशा नबी।
तमाम जंगी घोड़े गोश्त के तौर पर खत्म हो चुके हैं। अब तो सिपाही भी लड़ने के काबिल नहीं हैं। अगर खुदा हमें बचाना चाहता था तो वो वक्त अब गुजर चुका है। अच्छा तो खुदा का पैगाम सुने बादशाह सलामत। खुदावंद यूं फरमाता है कि कल तकरीबन इसी वक्त सामरिया शहर के फाटक पर एक मिसकाल में 1 पैमाना मैदा और 1 ही मिसकाल में 2 पैमाने जौ बिकेगा। आपका मतलब कल तक ये कहत खत्म हो जाएगा, खुराक सस्ती हो जाएगी? खुदावंद ने यही कहा है। लो, अच्छा मजाक है। अगर खुदा आसमान में खिड़कियां भी खोल दे तो भी ये बात हो सकती है। लेकिन खुदा ने यही कहा है। क्योंकि तुमने खुदा की बात पर यकीन नहीं किया, इसलिए सरदार आजम तुम सब कुछ देखोगे मगर कुछ खा नहीं सकोगे। जो कुछ इंसान के सोच में नहीं आ सकता और जिसको इंसान समझ नहीं सकता और इंसान सोचता है कि ये कैसे होगा, वो खुदा के लिए नामुमकिन नहीं है। खुदा कादिर मुतलक है, यानी खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है और जब खुदा कहता है कि वो मुहैया करेगा तो वो मुहैया करता है, क्योंकि वो ही यहोवा यरी है, यानी मुहैया करने वाला है। तो जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। इसलिए खुदा पर हमेशा भरोसा और तवक्कुल रखिए। बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है आईना। आईना के सामने है 2 किरदार, इंसाफ और ना इंसाफी। आइए मिलकर सुनते हैं इनकी बहस व तकरार। आईने में हम जाहिरी सूरत देखते हैं और बातिन में क्या है इससे ना आशना रहते हैं, लेकिन सोच का आईना हकीकत से आशना करता है। आज आईना क्या दिखा रहा है? क्या बात है इंसाफ भाई, बहुत खामोश खामोश से बैठे हो। तबीयत तो ठीक है ना? ना इंसाफी, तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही हो। क्यों भाई, मैं क्यों उड़ाने लगी तुम्हारा मजाक? तुम तो खुद ही मजाक बन रहे हो। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो भाई, जो शख्स बिला वजह हर जगह टांग अड़ाने की कोशिश करता है वो तो मजाक बनता है ना। मैं खुद टांग उड़ाने नहीं जाता ना इंसाफी, मुझे लोग तलब करते हैं। ओहो, तो जैसे तुम उनके पास पहुंच ही जाते हो। मैं कोशिश तो करता हूँ, अगर मुझे कामयाबी नहीं होती तो इसकी वजह तुम हो। अच्छा, कैसे भला? मैं कैसे? मेरे वहां पहुंचने से पहले तुम पहुंच जाती हो। तो ये तुम्हारी काहली और सुस्ती है, इसमें मेरा क्या कसूर? मैं सुस्त नहीं, हर काम का एक तरीका होता है। रहने दो तरीके शरीके, ऐसे तो तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। कौन सी तरक्की? जहां तुम होगी वो माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता। छोड़ो इंसाफ, ये तो तुम अपनी नाहली पर पर्दा डाल रहे हो, हालांकि तुम जानते हो कि अब माशरे में हर तरफ मैं ही मैं नजर आती हूँ। हाँ, इसीलिए माशरे में बुराई बढ़ती जा रही है। तुम्हारे नुकीले दांत अच्छाई को जख्मी किए दे रहे हैं। इंसाफ, ये तुम अच्छाई और बुराई के फलसफे से निकलो तो शायद तुम्हारे हवास कुछ दुरुस्त हो जाएं और फिर हो सकता है किसी जगह तुम वक्त पर पहुंच ही जाओ। ना इंसाफी, मुझे जहां जाना होता है ना, मैं वहां पहुंच ही जाता हूँ। पहुंच भी जाओ तो मुंह ही देखते रह जाते हो। मेरे होते हुए तुम्हारी क्या वुकत? मेरी वुकत तुम्हारी नजर में कुछ भी ना हो ना इंसाफी। मेरी कदर कीमत उन लोगों से पूछो जिनको मेरी जरूरत होती है। ओहो, क्या खाम ख्याली है। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मेरे होते हुए तुम्हारी दाल अब नहीं गलने की। तुम बहुत ज्यादा फैलने की कोशिश मत करो ना इंसाफी, फट जाओगी। इसकी फिक्र तुम मत करो, अगर फट गई ना तो ज्यादा जल्दी फैलूंगी, और अब जो तुम्हें कहीं खड़े होने की जगह मिल जाती है ना, वो भी नहीं मिलेगी। तुम एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी मेरी जगह नहीं ले सकती ना इंसाफी। ज्यादा शोर मचाने और बढ़ चढ़कर बातें करने से मकाम ऊंचा नहीं हो जाता। तुम्हारा और मेरा क्या मुकाबला, कहां तुम और कहां मैं। मकाम? कौन सा मकाम? तुम्हारा क्या मकाम है? लोग 4 पैसों में खरीद लेते हैं तुम्हें, और मैं माशरे में हर तरफ नजर आती हूँ, और तुम कोने में दबके दिखाई देते हो। चलो यूं ही सही, मगर जहां मैं डट कर खड़ा हो जाता हूँ वहां तुम मुंह छुपाती फिरती हो। अरे कभी कहीं तो तुम्हें मौका मिलता है, और वैसे भी जहां जरूरत होती है तुम पहुंच नहीं पाते। कभी कभार मौका मिल जाए तो अकड़ने लगते हो। चलो ये तो तुम जानती हो ना
کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بے بس ہو جاتی ہو۔ تم ہوتے کہاں ہو سوئی صورت؟ تم ایک جگہ رینگتے ہوئے پہنچتے ہو کچھوے کی طرح، تب تک 4 جگہوں سے ہو کر واپس آ جاتی ہوں میں ایک جگہ وہ کام کر لیتا ہوں ناانصافی جتنا تم 4 جگہوں پہ نہیں کر پاتی۔ ڈینگے مت مارو، تم سے کوئی کام ہوتا کہاں ہے؟ ہر طرف تو میں ہوتی ہوں۔ پہلے شاید ایسا تھا کہ میں صرف بڑے لوگوں کے پاس تھی، مگر اب میری جڑیں اتنی مضبوط ہو چکی ہیں کہ میں ہر طرف چھائی ہوئی ہوں۔ میرے وجود سے دنیا کا نظام قائم ہے، تمہاری ان باتوں سے مجھ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تمہارا وجود اب رہ ہی کتنا گیا ہے، سکڑ کر ذرا سے ہو گئے ہو۔ اور ایک بات تمہیں بتاؤں، تمہارے کم ہو جانے سے دنیا کا نظام چل رہا ہے نا، تو تمہارے ختم ہو جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خدا کا خوف کرو ناانصافی، انصاف ختم ہونے سے دنیا تباہ ہو جائے گی۔ دنیا کو کچھ نہیں ہوگا، وہ چلتی رہے گی، البتہ تم تباہ ہو جاؤ گے۔ کیا کہا؟ میں تباہ ہو جاؤں گا؟ جب سے یہ دنیا قائم ہے انصاف کا بول بالا ہے، ختم ہونے والی چیز ناانصافی ہے، ناانصافی۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، البتہ تمہیں ختم کرنے میں خود آ رہی ہوں۔ بس تھوڑی سی دیر انتظار کرو، میں آ رہی ہوں اور میرا اگلا نشانہ تم ہو۔ اب میرا نشانہ تم ہو، کیا ہم اس برائی کے جال سے بچ سکتے ہیں؟ دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ انصاف کرنے والے ادارے بھی انصاف کرنے میں بعض اوقات کامیاب نہیں رہتے، لیکن جو ہمارا حقیقی انصاف کرنے والا ہمارا منصف اور عادل خدا ہے، اس کے ہاں کسی قسم کی بے انصافی یا نا انصافی نہیں ہے۔ تو جو انسان اس دنیا کے اداروں سے انصاف نہیں حاصل کر پاتے، وہ خدا پر اپنی آس اور امید ضرور لگائے رہتے ہیں کہ خدا ہمارا ضرور انصاف کرے گا۔ تو انصاف کے بہت سے تقاضے ہیں جو کہ پورے کرنے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ تقاضے پورے کیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات انسانی عدالتیں اور انسانی منصف اس کو پورا کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ تو کہیے کہ آج کا سارا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ آج کے پروگرام کے بارے میں ضرور ہمیں اپنی رائے دیجیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا۔ ہمیں آپ کی خطوط اور SMS کا، آپ کی کالز کا انتظار رہے گا۔ ہمیں فیس بک پر بھی آپ ضرور وزٹ کریں، اور آپ ہمارا YouTube چینل بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو پروگرام کو ختم کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے اختتام پر ہم ضرور آپ کے ساتھ مل کر چند لمحات دعا میں گزارتے ہیں۔ تو آئیے خدا تعالیٰ کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے اپنی منتیں اور التجائیں خدا کے حضور میں پیش کرتے ہیں۔ اے خداوند خدا، آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ نہ صرف ہمارے خالق اور مالک ہیں، بلکہ ہمارے پروردگار ہیں، ہماری پروردگاری کرتے ہیں، ہمیں سنبھالتے ہیں۔ آپ یتیم اور بیوہ کو سہارا دیتے ہیں اور سنبھالتے ہیں۔ آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اور سب کچھ جو ہمیں چاہیے وہ مہیا کرتے ہیں۔ اور ہم شکر گزار ہیں کہ آپ کے حضور بے انصافی نہیں، بلکہ آپ سب کا انصاف کرتے ہیں۔ ہم اپنے پروگرام راہ زندگی کے سبھی لسنرز کے لیے آپ کے حضور دعا گو ہیں کہ آپ سب کے ساتھ ہوئیے، اور ان کو اور ان کے خاندان کے افراد کو بلیس کیجیے۔ کسی قسم کی مشکل، رکاوٹ، پریشانی ہے، یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ کسی قسم کے مقدمات ہیں، ہر طرح سے رہائی اور آزادی دیجیے، اور اپنے وطن عزیز کی خوشحالی، بہتری اور ترقی کے لیے بھی آپ سے دعا مانگتے ہیں، اور یہ دعا مانگ لیتے ہیں یسوع کے نام میں، آمین۔